बेंगलुरु के बिस्मिल्लाह नगर में ब्रेनी स्टार के चौथे ब्रांच का आगाज हो चुका है। उलमाए कराम की दुआओं के साथ 16 जनवरी बाद नमाज जुमा एक बड़ी और कसीर मंजिला इमारत में ब्रेनी स्टार स्कूल शुरू हो चुकी है। आज बतारीख 17 जनवरी बरोज हफ्ता कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, तालीमी शख्सियात यहाँ पहुंची और ब्रेनी स्टार स्कूल के हॉल, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, कंप्यूटर सेंटर और एक बड़े ऑडिटोरियम का इफ्तिताह किया। आंध्र प्रदेश के नौजवान एजुकेशनिस्ट, बेस्ट इनोवेशन यूनिवर्सिटी के साबिक रजिस्ट्रार डॉक्टर शाजिल अहमद, हैदराबाद के डॉक्टर इफ्तिखारुद्दीन, तमिलनाडु के तंजावर के प्रोफेसर शेख अलाउद्दीन, बेंगलुरु के जयनगर 4th ब्लॉक मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना अब्दुल सत्तार कासमी व दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। दोस्तों, ब्रेनी स्टार्स इंटरनेशनल मोंटेसरी और स्कूल के बानी एडवोकेट डॉक्टर डी हैदर वली की लीडरशिप में ब्रेनी स्टार का ये चौथा ब्रांच कायम हुआ है। इस खुशी के मौके पर ब्रेनी स्टार्स के स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स सब जमा थे। खास बात ये रही कि ब्रेनी स्टार स्कूल ने अपने इस ब्रांच में QGD प्रोग्राम का आगाज किया है। QGD यानी कुरानिक जनरेशन डेवलपमेंट। तो दोस्तों, QGD प्रोग्राम का मकसद एक तालिब इल्म को स्कूल की तालीम के साथ हाफिज कुरान भी बनाना है। यहाँ मौजूद वालिदैन और स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम से आगाह किया गया। आंध्र प्रदेश के एजुकेशनिस्ट शाजिल अहमद व दीगर ने मौजूदा हालात के पेश नज़र अहम तरीन पैगाम दिया और मौजूदा दौर में किस तरह की तालीम की ज़रूरत है इस पर रोशनी डाली। इस मौके पर ब्रेनी स्टार्स स्कूल के तलबा व तालिबात ने मॉरल वैल्यूज़ पर, दीनी और अखलाकी तालीमात पर इंतहाई खूबसूरत प्रोग्राम पेश किए। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। Remember, my friend, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "The best among you are those who have the best manners." Speak gently, help others, and be honest in everything you do. Who transforms sincerity. Thank you for him. You take. Go. Everybody, sir, go friend. Take notes and keep on going, sir. Take notes and keep on going. Designed for 24 love for learning. Then we have traditional books. We'll also give the books which is aligned with Montessori methodology, which brings transformation within the families and wider. Yes, sir. Yes. We have 5 environments in our Montessori concept. This is EPL, that is stands for Exercise for Practical Life, where will be the daily life activities like rolling the mat, pouring the grains, pouring the water with the glasses. Let me explain.
برینی اسٹار میں جو تعلیم کا نظام قائم کیا گیا ہے اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے میں تو الحمدللہ شروع سے برینی اسٹار کی تحریک جس دن سے شروع ہوئی اسی دن سے کسی نہ کسی درجے میں اس سے جڑا رہا ہوں۔ ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں جناب ڈی حیدر ولی صاحب شروع ہی سے الحمدللہ اور موقع پر یاد کرتے ہیں، رائے مشورہ کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، تو شروع سے میں دیکھتا آ رہا ہوں۔ پہلے 12-13 سال سے جو اسکول چل رہا ہے الحمدللہ، مونٹیسری ہے، پرائمری ہے، ہائی اسکول تک بھی الحمدللہ بھی پہنچا ہے۔ تو شروع ہی سے برینی اسٹار کی جو بنیاد ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہماری قوم کے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلش میڈیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا جائے۔ اصل مقصد وہی ہے کہ بچوں کا دین اور ایمان مضبوط ہو جائے، آج کے ماحول میں وہ غلط راستے پر نہ چلے جائیں۔ آج جو آپ ماحول دیکھ رہے ہیں ملک میں، کالجوں کا، یونیورسٹی کا پرپسلی پلاننگ کے ساتھ کوشش ہو رہی ہے مسلم بچوں کو، بچیوں کو ان راستے سے ہٹانے کی، بھٹکانے کی، ان کی دین اور ایمان کی جو دولت ہے اس کو چھیننے کی پلاننگ ہو رہی ہے باقاعدہ۔ تو ایسے ماحول میں اس کی یہ ضرورت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہماری قوم کے جو علماء دین ہیں، مخیر حضرات ہیں، وہ سب حضرات مل کر اپنے تعلیمی ادارے قائم کریں اور ایسے تعلیمی ادارے ہوں جن میں عصری تعلیم بھی معیاری ہو، انگلش میڈیم کا معیاری انتظام ہو، کوالٹی ایجوکیشن ہو، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اور تربیت کا بھی بھرپور انتظام ہو۔ تو الحمدللہ برینی اسٹار شروع ہی سے اسی لائن پر ہے، اور اب ایک نیا پروگرام جو شروع کیا ہے قرآنک جنریشن ڈیولپمنٹ پروگرام، اسی کو یہ آگے بڑھانے کی کوشش ہے کہ جس میں قرآنی تعلیم بھی اچھی معیاری ہو، تجوید کے ساتھ ہو، اور حفظ کا بھی انتظام ہو بچوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ حفظ کے ساتھ ساتھ قرآن فہمی کا بھی کورس ہو، قرآن فہمی ہو، قرآن کے معنی اور مطالب اس کی تفسیر کا علم ہو، تو بچے ایک ساتھ ہی جہاں وہ ایک طرف ہائی اسکول تک پہنچیں گے تو وہیں وہ انشاءاللہ حافظ بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، اور حافظ اور عالم بننے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی اسلامی نہج پر، اسلامی طرز پر ہو چکی ہوگی، تو ایک بہترین پکے مؤمن مسلم بھی ہوں گے، حافظ بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، اور دنیاوی لائن میں بھی پھر آگے جہاں بھی وہ جائیں گے انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، تو انشاءاللہ وہ قوم کا، ملت کا نام بھی روشن کریں گے، اور خود اپنی زندگی میں بھی وہ ان کی زندگی جو ہوگی ایمان والی ہوگی، دنیا اور آخرت میں کامیاب سرخرو ہوں گے، والدین کے لیے بھی دنیا میں بھی نیک نامی کا ذریعہ بنیں گے، اور آخرت میں بھی نجات کا وسیلہ اور ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ تو میری گزارش ہے آس پاس میں بسم اللہ نگر اور آس پاس کے علاقے کے جو ہمارے برادران اسلام ہیں کہ اس سنہرے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنے بچوں کو، بچیوں کو اس میں داخل کرائیں، اور ان کے دین اور ایمان کے تحفظ کا، بہترین تعلیم و تربیت کا تحفہ اپنی نسلوں کو دیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو اللہ کامیاب فرمائے، قوم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے، آمین۔ ایک یہ نیا برانچ کھولیں اسکول کا، یہ ایک مائل سٹون نہیں ہے ولی صاحب، جو ہے یہ ایک بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے، کیونکہ یہاں پہ آج آپ کو ڈکلیئر کرنا ہے کہ آپ کرنے کیا والے ہیں، کیا آپ امپلائیز بنانے والے ہیں، بچے جا کے ملازمت کرنے والے ہیں، یا پھر یو آر گوئنگ ٹو شیپ دا مائنڈ دا وے یو آر سیئنگ دیٹ نرچرنگ لیڈرز، رائٹ۔ ہمارے جو بچے ہیں، ایکچولی ہماری جو قوم ہے، اللہ تعالیٰ has promised us in Quran, right? سورہ نور میں، مفتی صاحب can correct me, اللہ تعالیٰ has mentioned that you bring ایمان and we'll make you the leaders of the world. He says ایمان لے کے آؤ۔ ایمان کی پہلی کیا ہے؟ what is the first شرائط of ایمان؟ چلیے اللہ پہ ایمان رکھنا ہے، آدھا ایمان کیا ہے؟ is cleanliness. How do we learn the cleanliness? It is through education, right? See, education, Allah Ta'ala said, read and understand. That was the first thing. Allah Ta'ala didn't say کہ بھائی تم جاؤ تلوار اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولے کہ آپ جا کے کیا ہے لوگوں کو پڑھاؤ. اللہ تعالیٰ بولے خود پڑھو پہلے. اقرا پہلا لفظ تھا. اقرا, that means read, right?
खुद नहीं पढ़ेंगे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, राइट? तो इसके 3-4 अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, मैं सोचा कि आई कैन प्रेजेंट दैट, राइट? कि अर्ली एजुकेशन जो आप अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं आज, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? व्हाई इज अर्ली एजुकेशन, किस लिए इंपॉर्टेंट है? इसके लिए अगर आपको समझना है अर्ली एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको चुन छाट के अल्लाह के नबी की जिंदगी और सहाबा की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। अल्लाह के नबी की जिंदगी में अर्ली एजुकेशन नाम की कोई चीज नहीं थी। अल्लाह के नबी की तालीम जो थी, अल्लाह के नबी को जब कुरान रिवील हुआ, उनकी उम्र जो है 40 साल के ऊपर थी। 40 साल, कैन यू इमेजिन अ 40-year-old मैन, राइट? आई ऑलवेज कॉल हिम द ग्रेट अरब, राइट? आई मीन मेरी वो आदत है। 40 साल की उम्र में अल्लाह के नबी ऐसा जो है इल्म देके गए कि इट कैन एनलाइटन अ स्मॉल चाइल्ड टू द ओल्डेस्ट ऑफ द पर्सन, राइट? तो आई टेल यू व्हाट हैपेंड, राइट? अर्ली एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि स्कूल को भेज दिए, एक सिलेबस है वो पढ़ के जा रहे हैं। एक बहुत अच्छा अल्फाज नीचे जो है, जो भी मोहतरमा जो थे समझा रहे थे हम ना ब्रेनी स्टार्स क्या करते हैं, वो बोले अखलाक के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग, बच्चों के अखलाक। अभी मेनी टाइम्स हम लोग मैं जब गवर्नमेंट में था, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उस टाइम में बहुत सारे लोग पूछते थे, अरे आप लोग बैठ के पानी क्यों पीते भाई बोल के? आई मीन द आंसर इज दैट इट इज सुन्नत। उसके मेडिसिन क्या बोलते हैं, उसके हेल्थ बेनिफिट्स कितने हैं, हाउ मच इट इंपैक्ट्स ऑन योर ब्लैडर, हाउ मच इट इंपैक्ट्स ऑन योर माइंड एज वेल, ये कोई समझाने के लिए आपको जो है यू हैव टू गो एंड गेन नॉलेज। अभी स्कूल की बात, आई विल जस्ट टेल यू अर्ली एजुकेशन के बारे में। अल्लाह के नबी की एक सुन्नत थी, जब भी किसी बच्चे को देखते हैं कि उसमें काबिलियत है, तो अल्लाह के नबी जो है उसको ऐसा काम देते, उसकी काबिलियत के आगे नजर आता बट लेकिन वो फुलफिल कर देते हैं। सो सब लोग सुन के हैं हजरत ज़ैद इब्न साबित के बारे में, ही इज नोन एज द लिंग्विस्टिक साहबा, राइट? तो महज उनकी उम्र 12-13 साल थी। तो अल्लाह के नबी जब मदीने गए तो उन्होंने पूछे कि भाई आप में से कौन लिख सकता है और पढ़ सकता है? तो ये नौजवान खड़े हो गए, नौजवान भी नहीं थे, बच्चे थे, खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं बोल के। तो अल्लाह के नबी बोले ठीक है, अच्छी बात है, तुम जाके जो है अभी हिब्रू और सीरियक सीखो। क्यों? क्योंकि यहूद और नसारा के साथ हमारा मुतालबा होता था, क्या होते थे, हमारे एग्रीमेंट्स होते थे। तो उसके वास्ते अल्लाह के नबी के क्या थी, इसमें देखिए हिकमत अमली क्या थी कि भाई वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर नॉलेज, वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर ट्रांसलेशन। इसीलिए ही क्रिएटेड अ इन हाउस इकोसिस्टम। आवर कम्युनिटी एक्चुअली हैज दैट inheritance of knowledge directly from Prophet sallallahu alaihi wasallam. So I'll tell you, I mean Zaid ibn Sabit radhiyallahu anhu, he became the chief transcribe of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, कि जो कुछ भी होता अल्लाह के नबी उन्हीं से लिखा पढ़ाई कराते, राइट? इसका ये रिजल्ट अब नहीं आता, एक्चुअली इसका रियल रिजल्ट कब आया कि अर्ली एजुकेशन जब दिए अल्लाह के नबी जो है दुनिया से पर्दा फरमा गए। उसके बाद जो है एक बहुत बड़ी जंग हुई, जंग यमामा, हजरत अबू बकर के जमाने में, उसमें 700 से ज्यादा हुफाज इकराम जो है शहीद हो गए। तो उस वक्त जो है, उस वक्त खलीफा वक्त जो थे हजरत अबू बकर, तो ही डिक्टेटेड, ही सेड के द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसक्राइबिंग द होली कुरान द वे वी सी, आज जो बच्चे आके पढ़ रहे थे, दैट वाज गिवन टू दैट यंग मैन हु इज ज़ैद इब्न साबित। इसका व्हाट द रिजल्ट व्हिच वाज क्रिएटेड, जो ये रिजल्ट बना, इसका मतलब ये था कि भाई अल्लाह के नबी अर्ली एज में बच्चे के ऊपर भरोसा करें, उसे तालीम दिए, और अल्लाह के नबी की वफात के एक अरसे के बाद जो है वो क्या करें, he became the person who has preserved the Quran for us today, the chief transcribe, right? ये actually early education का बहुत एग्जाम्पल है, not just men, यानी मर्द हजरात ही नहीं, औरतों का भी the biggest example। आप कोई बता सकते हैं कि अगर बड़े साहबा को कोई जो थी जरूरत पेश आती तो किसके पास जाते थे? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। मैं छोटी उम्र में उनकी तालीम शुरू हो गई थी। She didn't learn how to by heart things, right? उन्होंने ये नहीं सीखे कि भाई मैं रट्टा मार के कैसा ये वापस आगे बढ़ाऊं। उन्होंने जिंदगी समझे, अल्लाह के नबी की आदतें समझे और दुनिया तक लेके आए। 2000 से ज्यादा हदीसें हैं जो उनके थ्रू हम तक पहुंची हैं, राइट? सो व्हेन a man is educated, a single person is educated. When the woman is educated, the entire family is educated, right? So Islam has that very important. किया है ये स्कूल इधर पे अल्हम्दुलिल्लाह मॉन्टेसरी से 10th लग होगी इंशाअल्लाह ताला। आज जो खुसूसन एक प्रोग्राम हुआ है वो QGD प्रोग्राम, कुरानिक जनरेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस पे बच्चों को 3rd स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड लग 5 इयर्स का कोर्स रखे हैं।
ये कोर्स है ना अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनिक प्रोग्राम है, वर्ल्ड में यहाँ काफ़ी रिसर्च बेस का प्रोग्राम है। इस पे जो बच्चा फर्स्ट ईयर पे है ना फंडामेंटल्स पे काम करता है, ग्रामर पे काम करते हैं, उसके बाद हिफ्स का प्रोग्राम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इधर पे सिर्फ बच्चा हिफ्स नहीं करता है, जो कुरान की जो माना क्या है अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरानिक अरबिक जानता है, उस पे कुरान जब पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ों को समझता है और अमल भी करेगा इंशाअल्लाह। इनके स्कूल के साथ कुरान की और हिफ्ज़ जी की हाँ तालीम। जी दीनी जी थर्ड स्टैंडर्ड लग जाता है, थर्ड स्टैंडर्ड से चंद सब्जेक्ट हैं CBSE की हम पढ़ाएंगे, उसके साथ साथ कुरान हिफ्ज़ भी हो जाएगा। 7th स्टैंडर्ड पे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा मुकम्मल हाफिज बनेगा विथ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग द कुरान एज वेल एज द इम्प्लीमेंटेशन। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा है ना जो इस्लामिक हिस्ट्री जानेगा, सीरतुन नबी जानेगा। सिलेबस कौन सा रहेगा इस स्कूल का? CBSE। CBSE सिलेबस रहेगा। जी हाँ। तो इसके लिए जो है यानी कि पिछले जो आपके ब्रांचेस हैं वहाँ पर भी ये तजुर्बा हुआ है या ये पहली बार तजुर्बा कर रहे हैं। इधर पे बहुत जरी बड़ी जगह है, दूसरे स्कूलों में बड़ी जगह नहीं है अभी फिलवक्त। ये प्रोग्राम इधर पे इम्प्लीमेंट करके इंशाअल्लाह ताला सारे हिंदुस्तान में, सारे वर्ल्ड में भी फैलेगा इंशाअल्लाह ताला। एक रोल मॉडल बनाने की एक मॉडल है कुरानिक जनरेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम।